بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کی اراضی 3,47,190 کلومیٹر پہ محیط ہے، جو کہ پاکستان کے کل رقبے کا 47.6% بنتا ہے۔ اس کے برعکس بلوچستان آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے، جہاں مجموعی آبادی کا کل 6% آباد ہے۔ قدرتی طور پر بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ اور بلوچستان کے یہ وسائل صوبے کے لیے اس حوالے سے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر موجود ہے کہ ان وسائل کو خرچ کرنے والے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان وسائل کے مقابلے میں انتہائی قلیل تعداد میں ہیں۔ بلوچستان کی قابل کاشت زمین، سونے چاندی، تانبے اور کوئلے سمیت دیگر نایاب معدنی وسائل اور آبی ذخائر بلوچستان کو معدنی وسائل سے مالا مال سرزمین ثابت کرتے ہیں، لیکن ان معدنی وسائل بشمول آبی ذخائر کے کمزور مینجمنٹ نے وہ نتائج نہیں دیے جو کہ صوبے کے عوام کو ملنے چاہیے تھے۔ بلوچستان کے آبی ذخائر کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر 4 طرح کے آبی وسائل موجود ہیں۔ ان میں سے میدانی اور ساحلی ندی نالے ہیں، جہاں سے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ دریائے سندھ سیلابی اور زیر زمین موجود ذخائر سے مجموعی طور پر 6 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل ہوتا ہے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے ان تمام آبی ذخائر، جن میں سیلابی پانی، کاریزات اور بارانی پانی شامل ہے، کے ضیاع کو روکنے اور ان کے بہترین استعمال کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کثیر الرقمی اور ہنگامی پروگرامز شروع کیے گئے ہیں۔ تاکہ بلوچستان کے بیش بہا آبی ذخائر کو زراعت، انسانی آبادی اور جانداروں کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ بلوچستان جو کہ بنیادی طور پر ایک زرعی خطہ ہے، جہاں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بلوچستان کی دیہی آبادی کا تقریباً 70% حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ مگر بلوچستان کے کاشتکار جدید زرعی اصولوں سے ناواقفیت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے زراعت سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پائے جو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی زراعت کا جی ڈی پی میں شیئر 30% ہے، جبکہ کوئی دوسرا سیکٹر جی ڈی پی میں اتنا شیئر نہیں دے سک رہا۔ موجودہ حکومت زراعت کو فروغ دینے اور کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو میرے پیچھے گرین بیلٹ نظر آ رہا ہے، یہ خوزڑی کا علاقہ ہے، ہرنائی کا، اور یہاں مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج سے چند برس قبل یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مکمل علاقہ بجری اور ریت سے بھرا ہوا تھا، یہاں پہ پانی نہیں تھا، زراعت ہوتی تھی مگر انتہائی محدود، اور پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا، محنت زیادہ لگتی تھی اور فصل کم ہوتی تھی۔ اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ واٹر مینجمنٹ والوں کی یہاں پہ محنت کے باعث یہاں ان کو تالاب اور واٹر کورسز بنا کر دیے گئے، جس کے بعد ان کی زراعت میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کے مقامی آبادی بے انتہا خوش ہے کہ وہ سال بھر میں یہاں پہ فصل بھی لیتے ہیں، انہیں نقد آور فصلیں یہاں پہ مل رہی ہیں، خوشحالی ہے، اور اس سارے کام کا سہرا جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ کے سر جاتا ہے۔ یہ پراپر خوزڑی جو کہ ہرنائی کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، جو 50-60 سال سے پہلے
यहाँ पानी का बिल्कुल बहुत सख्त बहरान था। फिर वहाँ 60 साल पहले सदर अयूब के दौर में यहाँ एक चैनल वाम तंगी से निकाला गया जो कि खुजड़ी के लिए, तो यहाँ पानी का पूरा बिल्कुल नहीं होता था पूरा इलाके को सैराब करने का, तो बहुत कम ज़मींदार यहाँ पर वो लेते थे। बाद में जो वाटर मैनेजमेंट के जितने प्रोग्राम शुरू हो गए, इन लोगों ने हमारे जो फार्मर कम्युनिटी उनको बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें जो हमारे वाटर लॉसेस थे 70 से 80% तक जो हमारा जो लॉसेस सेव हो गए, पानी का जो लॉसेस है वो बचत हो गए। तो उनसे हमारी जो कमांड एरिया है वो भी बढ़ गई। तकरीबन इस टाइम हज़ारों ज़मींदार और हज़ारों एकड़ जो है ना वो कमांड एरिया में इजाफा हो गया और हम इसी तरह पैदावार में इजाफा हो गया। ये तो अभी हमारा जो मौजूदा सेक्रेटरी ज़राअत है, इनके कोशिशों और इनके प्लानिंग से हम बाकायदा एक जॉइंट एक्टिवेशन सिस्टम को हम लोगों ने इनकी मदद से मुतारिफ़ कराया गया है। तो हम इसमें जो 4 विंग है यहाँ रिसर्च के अलावा, हम चारों विंग के जो हेड्स है और अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ अपना बाकायदा एक मंथली प्रोग्राम चेक आउट करते हैं। उस प्रोग्राम के मुताबिक हम चारों ऑफिसर्स बम्मा स्टाफ आकर ज़मींदार के साथ हर हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग, इनके कोशिशों और इनके प्लानिंग से हम बाकायदा एक जॉइंट एक्टिवेशन सिस्टम को हम लोगों ने इनकी मदद से मुतारिफ़ कराया गया है। तो हम इसमें जो 4 विंग है यहाँ रिसर्च के अलावा, हम चारों विंग के जो हेड्स है और अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ अपना बाकायदा एक मंथली प्रोग्राम चेक आउट करते हैं। उस प्रोग्राम के मुताबिक हम चारों ऑफिसर्स बम्मा स्टाफ आकर ज़मींदार के साथ हर हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग, जिसको फील्ड डे के नाम से हम करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको पोस्ट हार्वेस्टिंग के मुतालिक बताते हैं कि आपने फ्राम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई करना है। इसी तरह वाटर मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस, जो हमारे साथ वाटर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है बाज़ मोहम्मद साहब, वो उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से वाटर जो इरिगेशन एप्लीकेशन है वो करें। वो जो लैंड लेवलिंग के हवाले से फिर वो करपाल बुक्टी साहब है जो वहाँ एक्सपर्ट है लैंड लेवलिंग, और उसके वो फिर उसके मुताबिक मशवरे देते हैं। काश्तकारों ने बताया कि इससे कबल जब उनके पास पुख्ता तालाब या फिर पुख्ता वाटर कोर्सेज नहीं थे तो उनकी मुश्किलात भी बेशुमार थीं। कच्ची नालियों के सबब जहां पानी जाया होता था वहीं पे फसलें भी पानी से रह जाती थी और अफरादी कुव्वत बेतहाशा लगती थी। मगर अब न सिर्फ पुख्ता तालाब की वजह से पानी जाया नहीं होता बल्कि कम वक्त और बिजली के कम खर्च में पानी जखीरा हो जाता है और पक्की नालियों की सफाई भी बार बार नहीं करनी पड़ती, जबकि एक ही आदमी पूरे खेत को पानी देता है। ज़राअत वालों ने हम लोगों के साथ बहुत इम्तियाज़ किया है, क्योंकि तालाबे बनाए, नाले बनाए, हम लोगों को तो पानी बहुत कम था। इस वजह से हम लोगों ने ये नाले बनाकर हम लोगों को तालीम नाला बन गया तो पानी हम लोगों को पूरे होते हैं। इससे पहले क्या क्या करते थे यहाँ पे? बस गुजारा करते थे, खाली गुजारा करते थे। कितने एकड़ पहले यहाँ पे आप लोग आबाद करते थे और हम लोग कितने एकड़ करते हैं? हम लोगों को भाईजान हम लोगों को 5 एकड़ आबाद था। 5 एकड़ अभी तकरीबन होगा तकरीबन 25 एकड़ 23 एकड़ इतना बन गया। काश्तकारों को पुख्ता वाटर कोर्सेज बनाकर दिए गए, जिसके बाद काश्तकारों का कहना है कि उनकी पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ उनकी जेब पर जो इजाफी बोझ पड़ता था वो भी खत्म हो गया है और अफरादी कुव्वत भी अब उन्हें कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। उम्मीद है कि वो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत वाटर सेक्टर पे बहुत तवज्जो दे रही है और उन्होंने अभी 30 अरब रुपए से खासकर डैम्स बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल ग्रांट दिया था वो खर्च होएगा, क्योंकि एक तरफ है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरी तरफ है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी जब हम पानी जो रिसोर्सेज हमारे जा रहे हैं, बारिशी पानी ज़ाया हो रहा है, उसी को डैम्स की शक्ल में कंट्रोल करें, उसको मैनेज करें, उससे रिचार्ज जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बढ़ जाएगा और साथ साथ जो कमांड एरिया है वो उसे डेवलप करेंगे। और दूसरी तरफ वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, असल चीज़ है वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो हमारे पानी जो इस वक्त ज़ाया हो रहा है स्टोरेज की शक्ल में, कन्वेंस की शक्ल में और साथ साथ फील्ड एप्लीकेशंस, यानी स्टोरेज में हमारा पानी ज़ाया हो रहा है, उसके बाद जब हम स्टोरेज से पहुंचा रहे हैं सोर्स से कमांड एरिया तक, नालियों की शक्ल में कच्ची नाली में 30% 39% तक पानी वहाँ ज़ाया हो रहा है। उसके बाद फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज, यानी फील्ड एप्लीकेशन के बाद मकसद ये कि हम जब फील्ड में दरख्तों को पानी देंगे, फ्लड इरीगेशन, ये जो लोग इस वक्त रिवायती तरीक़ाकार है
इससे पानी ज़ाया हो रहा है, 25% वहाँ ज़ाया हो रहा है। हमें चाहिए कि वो जो फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज है इस वक्त, स्टोरेज को कम करे, फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज को कम करे और कन्वेंस लॉसेज करे। जब हमने वाटर मैनेजमेंट में ग्रीन बलूचिस्तान शुरू किया, इस वक्त इतने ज़्यादा दरख्वास्तें आ रही हैं डिस्ट्रिक्टों में भी, हमारे पास भी, कि हमें अच्छा बीज दे दें, हमें तालाब बना के दे दें, हमें नाली बना के दे दें, हमें बल्कि ट्रिकल इरिगेशन की तरफ उन्होंने खासकर पशीन में और किला अब्दुल्ला में और किला सिफला लोलाई के लोग, बात के जमींदार ज़रात के भी लोग आ रहे हैं कि हमें ट्रिकल इरिगेशन पे कुछ करें। लेकिन ट्रिकल इरिगेशन की तरफ अभी हम लोगों ने इस दफ़ा ये खासकर वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम लोगों ने ट्रिकल इरिगेशन की तरफ खासकर डिमॉन्स्ट्रेशन किया तक हमने प्रपोज किया हुआ है और उम्मीद है वो भी हो जाएगा। सूबाई बलूचिस्तान में डोनर्स, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के ताउन से हमने 19,000 स्ट्रक्चर्स यानी 19,000 यूनिट्स बनाए, जिसमें तालाब, नालियाँ, ट्यूबवेल्स, पीवीसी पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, आरसीसी पाइपलाइन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इस 19,000 स्ट्रक्चर्स के रिजल्ट में हमने यहाँ पे 2.6 मिलियन एकड़ फीट पानी की बचत की है। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान, जो कि माजी में अपने फलों के बागात की वजह से फ्रूट बास्केट कहलाता था, मगर अब कम बारिशों और पानी के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में कमी वाक़े होने के सबब ये फलों के बागात तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। सूबे में तवील तरीन खुश्क साली और बिजली के बहरान ने भी बलूचिस्तान की ज़राअत के मुस्तकबिल को खतरा से दो चार कर दिया है। ये मैंने एग्रीकल्चर वालों के तवस्सुत से लगाया। इसका फंड मुझे मीर सरफराज बुगटी साहब ने दिया। मैं इन दोनों महकमे का भी और सरफराज बुगटी साहब का दोनों का शुक्रगुजार हूँ। वाटर मैनेजमेंट का तो हमारे साथ कई अरसे से चल रहा है। बुगटी साहब एक दोस्त के नाते हमको ये मजबूरी था, पानी न होने की वजह से बिजली की बोरान आप लोगों के मालूम है पूरे मुल्क में है, ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान में, फिर खास कर ज़िला किला शिपला जो है, ये बिजली की वजह से पूरे ज़मींदारों की जो है बहुत बुरा हाल है। रोड भी बंद किए, हड़तालें भी किए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो मैंने लगाया है सोलर सिस्टम, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी ज़मींदारी को बहुत तकवीत पहुंचेगा पानी की न होने की वजह से। तो मेरा इरादा यही है कि मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा वाटर मैनेजमेंट वालों से, हमारी ये जो तालाब वगैरह हैं, ये पानी की स्टोर हम लोग करते हैं, ये कच्चा है, पानी कजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को नुकसान पड़ता है। हम फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे एक दो तालाब है, इनको पक्का करवा दें। इनकी मेहरबानी होगा, पहले भी इनकी बहुत मेहरबानी है, हम लोगों पे पाइप की है, नाली की है, तालाब की है, अब भी ये लोग हम लोगों को चला रहे। साथ साथ में इसमें हमारे एक दोस्त है एग्रीकल्चर ज़राअत का जो है वो सेक्रेटरी अब्दुल वहाब काकड़ साहब, वो भी हमारे साथ अच्छे टर्म्स रखते हैं। उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, पूरे किलाशपला के साथ है, सिर्फ अरबाब के साथ नहीं है। अरबाब तो एक शख्स है, उस पूरे किलाशपला के साथ इनकी तालाबें, इनकी और कई वगैरह मदद की है ज़मींदारों। जो सोलर प्लांट लगाया आपने, अब इससे कितने एकड़ फीट ज़मीन आप सैराब करते हैं और बिजली कितनी हासिल करते हैं इससे? अभी तो जनाब आली ये बिजली भी बीच में आ रही है, ये भी एक है, एक दूसरे का भी हमने इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल और करम से। ये समझो कि ये हमको 10 घंटे 3 इंच जबरदस्त पानी देता है। इससे हम लोग 30 एकड़ 35 एकड़। बलूचिस्तान में ज़राअत को फरोग देने के लिए हमें रिवायती तरीक़ेकार को छोड़कर ज़राअत के जदीद असूलों को अपनाना होगा और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी होगी। एक मुस्तहकम किसान ही मुस्तहकम माशरे की ज़मानत होता है।
हमें रिवायती तरीक़ेकार को छोड़कर ज़राअत के जदीद असूलों को अपनाना होगा और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी होगी। एक मुस्तहकम किसान ही मुस्तहकम माशरे की ज़मानत होता है।